Any doubt? No doubts? Okay, let's start from the expand SOB expression where we left last time. No? Let me do this. Yes. Suppose a function is given to you as a plus b bar c. Right. Now we have to express this in a sum of min terms. So how to do that? Any idea? Last time I told you. In this function, how many variables are there? बोलो. सर ए वाला जो है ना उसको लिख दो a इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. Very good. ये जो आपका b डैश c है इसको लिख दो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट. Into a plus a complement. Very good. So what we did is we simply try to put all the variables in every term, right? So when you open them, what will become? A, B, C plus A, B, C bar plus A, B bar, C plus A, B bar, C bar plus A, B bar, C plus A bar, B bar, C. Now just check it out. If there any term redundant. मेरे को टर्म रिडंडेंट आपको? These two terms are same, right? So what we can do? We can just write it once. So it will be what? ABC plus ABC bar plus AB bar C plus A bar B bar C plus A B bar C bar. So which terms are these? This is which main term? Bolo? ABC. ABC stands for? बोलो बच्चों. 111 क्या होता है? 111. A is 1, B is 1, C is 1. So it means 111 का इक्विवेलेंट क्या होगा? 7 नहीं होगा? 7 sir, yes sir, M7. बोलो ना यार. ये क्या होगा बताओ? ABC बार. ये कौन सी मिन टर्म है? 6. M6. M6, yes sir. उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? M5. 5. M5. This one is M1. M1. And last one is M4. M4. So it means this function is nothing but the summation of min terms 1, 4, 5, 6, 7. So this is the way how we have written this function as a sum of min terms. Right? Any doubt in this? Okay, now let's have a quick look into that slide. Right, the same we got M1, M4, 5, 6, 7. So this is a way to write it. So here this left hand denotes a function which is having 3 variables and the name of the variable is A, B and C. And this is nothing but equal to sum of the min terms 1, 4, 6, 5, 6, 7. Right. So summation stands for ORing of terms. So the numbers following this indicate the term min terms of the function. So alphabets after F from a list form a list in the order of the min term is formed. So ये ध्यान रखना यहाँ पर जो लिखा ना A, B and C. So accordingly हमने निकाली min terms. तो यहाँ पर एक चीज जो बच्चे जनरली गलती करते हैं वो बताता हूँ क्या गलती करते हैं. जैसे अब मान लो मैंने लिखा A, B, C. So we are taking A as MSB and C as LSB. Right. So it means if I'm writing 101, it indicates that key it's 5, M5. But if suppose you write here FCBA or FBCA,
सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स. इसमें क्या है, यहाँ पर आपका ये एमएसबी है, ये एलएसबी है, ये एमएसबी है, ये एलएसबी है. सो इसलिए जब भी आप यूज करो तो ऑलवेज फॉलो द कॉमन नोटेशन एबीसी अगर नहीं गिवन फंक्शन में. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मिन टर्म निकलेंगे उसकी. क्लियर? नेक्स्ट देखो, obtaining expanded SOP from the truth table. आपको truth table given होगा, राइट? अब इस truth table से आपने क्या निकालना है? to form expanded SOP expression. तो आप truth table में आपको बताया मैंने क्या देखना है, you have to look into the function f या One फिर function देखना है। given था a plus b bar c, है ना? तो अब आपको इसमें क्या है कि आपको एक truth table दे रखा है a plus b bar c का. कैसे मतलब कि अगर a plus b bar c है, इसका मतलब क्या हुआ कि a वाला उठाओ कॉलम, एक कॉलम के जो भी वैल्यू है 0 है 1 है उसको और करो किसके साथ, b complement into c. Let me do that. Suppose let's take this combination, right? 0 1 0. So 0, my function is a plus b bar c. So a is 0, b bar, b is what here for this combination 1, so b bar will be 0 dot c is also 0. So this function is 0. This is written. Now let's take some other value. Let's say 1 0 1. सर एक बार ये बताना. सर ये a कैसे 0 हुआ? ये 0 कैसे हुआ? हमने एक कॉम्बिनेशन लिया ये वाला फॉर दिस कॉम्बिनेशन. इस कॉम्बिनेशन में a 0 है, b 1 है, c 0 है. So basically what they are doing that they are just trying to prepare a truth table for the given function. तो आपको जो फंक्शन गिवन है उसमें देखा आपने 3 वेरिएबल्स हैं a b और c. तो हमने 3 टर्म वेरिएबल्स के लिए 8 कॉम्बिनेशन लिखी पहले. अब कोई भी कॉम्बिनेशन मेरा आउटपुट क्या होगी वो मुझे निकालनी है बाय पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन 1 by 1. तो अब मैंने जब दिया आपका 0 1 0 तो a 0 है, b 1 है, c 0 है. अगर a 0 तो a 0 हो गया, b 1 है तो b bar 0 हो गया, डॉट c 0 है, c 0 हो गया. तो दिस इज कमिंग आउट टू 0. इट मींस दिस वैल्यू इज 0. Likewise, if I suppose take 1 0 1, so 1 0 1 means a is 1 plus b is 0, b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 dot c is 1, so output is 1. It means here the function is 1. So like this, for a particular function, by putting the different combinations of my input variables, I can find out the function output, whether it is 0 or it is 1. Got this? तो कोई भी फंक्शन गिवन होगा, आप उस फंक्शन का ट्रुथ टेबल बना सकते हो आराम से. सिर्फ आपको चाहिए क्या, पहले चीज ये नोट करने की कितने उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, उतने वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके, वो कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर एक कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली उसको बना दो. Right? Let's check it out now. Let me erase this. So prepare the truth table as shown. The term that yields f is equal to 1 are considered for producing an expression which is a SOP. कहने का मतलब क्या है, जब आपने ट्रूथ टेबल पहले बना दिया, अब उस ट्रूथ टेबल में जहां जहां फंक्शन की आउटपुट वैल्यू 1 आ रही है वो वाली हमारी क्या आएंगी, मिन टर्म्स आएंगी फॉर राइटिंग द फंक्शन. तो यहाँ पर कौन सी है, मिन टर्म 1, मिन टर्म 4, 5, 6 एंड 7. Is this thing clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's take a summary जो हमने discuss किया last time भी अभी कि for n variables if it is given there are 2 raised to n distinct min terms starting from m0 to 2 raised to n minus 1, right? Then any Boolean expression can be expressed as sum of min terms. The min term whose sum defines the Boolean function are those that gives 1 in the truth table. तो जब फंक्शन की जहां जहां 1 आ रही है ट्रूथ टेबल के अंदर, वो सारी सारी हमारी क्या होंगी, मिन टर्म्स होगी, उन सबका सम लेना टू गेट अ एसओपी एक्सप्रेशन. Then since the Boolean function can be either 0 or 1 and there are 2 raised to n min terms, the possible combinations of the functions that can be formed is 2 raised to power 2 raised to power n. क्या मतलब है इसका, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मान लो अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है, राइट? तो इट मींस 2 raised to power 2 मींस 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, है ना? तो 4 कॉम्बिनेशन तो क्या हुए हमारे ऑप्शन 0 0 0 1 1 0 1 1. अब वो क्या बोल रहा है, द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सच फंक्शंस इज 2 raised to power 2 and it means 2 raised to power 4, इट मींस 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो हमारे 2 वेरिएबल से बन सकते हैं. सर एक बार दोबारा से बता दो पॉइंट. हाँ,
देखो पहला पॉइंट क्या बोला कि अगर कोई बुलियन फंक्शन है तो उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, है ना, दो ही लेवल्स होते हैं। तो अगर अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसके अंदर n हमारी बिट्स आ रही हैं, n टर्म्स आ रही हैं, a b c अप टू n है मान लो, तो उसके अंदर मिन टर्म्स कितनी होंगी, 2n। सो वी हैव टेकन एग्जांपल n मान लो 2 है, तो हम कहते हैं कि 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो मिन टर्म्स क्या होती है हमारी, m0 से m3, m1 m2, है ना। तो इट मींस द नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज 2n। नाउ वी हैव टू फॉर्म a different function using these combinations, right? तो वो कह रहा है कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2n। It means 2 16 are the possible combinations where these 4 min terms can be combined together. Got it? Yes, sir. Okay, now next is complement of a function. The complement of a function expressed as sum of min terms equals the sum of min terms missing from the original function. क्या मतलब है, अगर मान लो आपने फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया, जैसे आपको एसओबी फॉर्म में गिवन था, तो एसओबी का मतलब तो ये था कि वहां हमारी फंक्शन क्या है, 1 आ रहा है, राइट। तो अगर आपने उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट किया, वो किसके इक्वल होगा, वो वाली मिन टर्म्स का सम जहां पर हमारी ओरिजिनल फंक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे हमने पीछे ट्रूथ टेबल देखा था, लेट मी अगेन शो यू दिस वन। अब जब मैंने ये देखा कि पहले यहाँ पर m1 m4 m5 m6 m7 इन सब में मेरा 1 आ रहा है। अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट लूंगा, f बार लूंगा, तो क्या आएगा, आई विल गेट द टर्म्स m0 m2 एंड m3। इज दिस थिंग क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So if a boolean expression is not in its canonical form, canonical form आपको पता है इसमें सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, राइट। इट कैन बी कन्वर्टेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, जो आपको पता है अच्छे से, कि एक्सपैंड द एक्सप्रेशन इनटू सम ऑफ एन टर्म्स, इंस्पेक्ट ईच टर्म टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। ये आपको खुद इंस्पेक्ट करना है कि हर एक टर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, राइट। If it misses one or more variables and the term with an expression such that x plus x bar where x is the missing variable, जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था a plus a bar b plus b plus मल्टीप्लाई किया था, अकॉर्डिंगली वही बात बोल रहा है आपको। The expression thus obtained which contains all the possible combinations of the missing variable is called expanded form of Boolean expression. Similarly, the summary for the product of max terms, if there are n variables, there are 2 n distinct max terms. Any Boolean expression can be expressed as sum of max terms. Sorry, sum नहीं आएगा, product आएगा यहाँ पर। Max terms whose product defines the Boolean functions are those that give the 0 in the function. तो जब भी आप max terms की बात करते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये वो वाले फंक्शन की वैल्यू है जहां जहां हमारी max terms मींस फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, वहां पर 0 आ रहा है। So whenever I'm saying इस फंक्शन में मेरी ये मिन टर्म्स है, तो इसका मतलब क्या है, उन मिन टर्म्स का इंडिकेट करते हैं कि वो वैल्यू 1 है फंक्शन। अगर मैं कहता हूं कि इस फंक्शन की ये मैक्स टर्म्स है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाली टर्म्स की कॉरस्पॉन्डिंग मेरा फंक्शन क्या है, 0 है, राइट। देन सिंस द फंक्शन कैन आइदर बी 0 और 1, वही सेम चीज, so it can take 2 to n max terms, so the possible combination of these functions can be 2 to the power n. So to express the Boolean function in product of max terms form, it must be brought in to a form of all terms, right? तो इसमें क्या होगा, if a Boolean expression is not in canonical form, तो you need to convert first into canonical form. वो कैसे करेंगे स्टेप, पहले convert the function into product of all terms. मींस ऐसे all terms का मतलब क्या है कि आपको सम आ रही है a plus b plus c, उनका प्रोडक्ट करो a plus b plus c बार से, कन्वर्ट करो a plus b bar plus c से, लाइक दिस। पहले और फॉर्म टर्म्स ले लो, उन और टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे। देन एग्जामिन ईच और टर्म फॉर एनी मिसिंग वेरिएबल, तो हर एक जो और टर्म है उसमें चेक करो कि सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो ऐड x इनटू x कॉम्प्लीमेंट, या a बार b बार c बार जो भी आपने ऐड करना है, टू दोस और टर्म्स वेयर अ वेरिएबल इज मिसिंग। एक्सपैंड द टर्म्स एंड रिमूव द रिडंडेंट टर्म्स देयरआफ्टर, राइट। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन कि आपको मान लो
गिवन ये है कि फंक्शन एफ ए बी सीरीज a प्लस a बार प्लस b डॉट a बार प्लस b प्लस c बार प्लस d बार। तो इस फंक्शन में देखो क्या चीज मिसिंग है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या मिसिंग है, C and D. C and D, c sir. एंड d, और सेकंड ब्रैकेट में पूरे हैं, है ना। Yes, तो sir. अगर c एंड d मिसिंग है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, plus C dot C bar वेरी गुड, Yes. plus D dot D bar. वेरी गुड। तो उसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला एक्स प्लस वेरिएबल का, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर कर रखी है देखो। तो फर्स्ट टर्म हैज टू वेरिएबल्स मिसिंग, तो यहाँ पर दो वेरिएबल डाल दी, तो उसको एक्सपेंड कर दिया। नाउ जब एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ये 4 टर्म्स आ गई एक्सपेंड करने के बाद, राइट। अब यहाँ पर देखो जो भी हमारी टर्म्स आ रही हैं, हर एक टर्म में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कंप्लीट ना हो, इसके सारे वेरिएबल्स ना हो हमारे पास, राइट। देन कंबाइन दीस टर्म्स, सो कंबाइन द एक्सपेंडेड फर्स्ट टर्म एंड द ओरिजिनल सेकंड टर्म प्रोड्यूसेस द एक्सपेंडेड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये हमारी 5 क्या आ गई है, मैक्स टर्म्स। तो अब इसमें देखो कोई आपकी रिडंडेंट टर्म होगी, इसमें कौन सी रिडंडेंट टर्म है, लास्ट 2 a बार प्लस b प्लस c बार प्लस d बार और a बार प्लस b प्लस c बार। तो लास्ट 2 को हमने एक बार लिख लिया हियर ओनली, Sir, क्लियर है ये? हाँ बोलो। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड कर सर, यहाँ से दोबारा से बता दो सर, एक बार एक्सपेंडेड प्रोडक्ट से सर। हाँ देखो ये वाले पॉइंट से, यहाँ से, यस सर। यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारे पास ये 4 टर्म्स आई थी ना ऊपर, इन 4 टर्म्स को लिख दिया पहले हमने, ये फर्स्ट 4 देखो, यस सर। फिर और ये 5वीं टर्म हमारी ऑलरेडी पहले फंक्शन में गिवन थी, वो जो कंप्लीट थी वो लिख दी Okay. हमने यहाँ पर। ओके फिर हमने देखा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म साथ वाली दोनों सेम है, तो हमने इसको एक बार लिखा, ओके सर। तो ये हमारा पीएस फॉर्म में आ गया। ओके सर, थैंक यू सर। अब देखो कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स। सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ abc एज समेशन ऑफ 1 4 5 6 7, वो फंक्शन लिया हमने, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन दिस इज फाउंड बाय दोस टर्म्स दैट प्रोड्यूस 0 फॉर द फंक्शन और द मिन टर्म्स दैट आर मिसिंग इन द अबव एक्सप्रेशन। इट मींस अगर आप इस फंक्शन f का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो वाले मिन टर्म्स मिलेगी जहां पर हमारा फंक्शन पहले 0 आ रहा है। इट मींस m0 m1 m0 m2 and m3, that's what we're getting. So it means f complement of ABC function is nothing but a sum of min terms 0, 2 and 3. Clear? Now taking the complement of the function by De Morgan's theorem. तो De Morgan's theorem से इसका complement लोगे तो क्या मिलेगा, complement क्या होता है, सेम वेरिएबल होता है ना। तो पहले Yes, f sir. complement ABC का फिर complement करते, तो it will become what, f a of b of c. Let's check it out. तो अब जब इसको करोगे आप तो क्या आएगा, m0 डैश m0 complement डॉट m2 complement डॉट m3 complement, राइट। सो सिंस mj complement इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल mj होता है, हमने देखा था पहले। अगर हम मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट करते तो Yes, क्या sir. बनता है, मैक्स टर्म बनती है, Max term. मैक्सिमम टर्म सर। है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, f ऑफ abc क्या बन जाएगा, m0 m2 m3, क्योंकि m0 स्मॉल m0 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल m0, स्मॉल m2 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल m2, स्मॉल m3 कॉम्प्लीमेंट का मतलब कैपिटल m3। इट मींस मिन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट इज द कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स। तो जो मेरी m0 m2 m3 मिली, ये मेरी मैक्स टर्म्स मिली जहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा, बताओ, 0 होगा या 1 होगा, Zero जहाँ पे zero 0 होना होगा। चाहिए. जीरो जहां होगा पर सर। मैक्स टर्म्स गिवन होगी वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म हमारी गिव्स अस 0। यहाँ पर देखो m0 m1 सॉरी m0 m2 एंड m3, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, 0 है, बाकी जगह क्या है, 1 है। One. सो इट इज रिटन एज पाई ऑफ 0 till। जब भी हम पाई लिखेंगे वो कब लिखते हैं, पीओएस के लिए, समेशन लिखते हैं हम एसओपी के लिए। तो ध्यान रखना कौन सी फॉर्म आप यूज कर रहे हो। सो फंक्शन आपको क्या हो गया, अब ये फंक्शन देखो दोनों फॉर्म में लिख दिया। Function f of ABC is sum of the min terms 1, 4, 5, 6, 7, or it is a product of max terms 0, 2, and 3. Both things are giving me the same function. Getting this point? तो आपको इस जो लास्ट लाइन लिखी है इसमें ये पता लग रहा है कि एक फंक्शन जिसका बिहेवियर बिल्कुल सेम है, चाहे मैं एसओबी में लिखूं चाहे मैं पीओएस में लिखूं, दोनों में लिख के दिखा दिया। और फर्क क्या है, जो टर्म एसओबी में आ रही है पीओएस में उसकी उल्टी टर्म्स आ रही है। देख रहे हो ध्यान से, यस सर।
बट दोनों के अंदर अगर मैं ऐड करूँ तो पूरा फंक्शन आ जाता है, सारी टर्म्स आ जाती है, Yes, sir. राइट? चलो, लेट्स नाउ डू सम मोर क्वेश्चंस. For a Boolean function, you're given is f of ab is equal to summation 0 to. You have to prove that f of ab is equal to pi 1 of 3. करो प्रूफ शाबाश फटाफट. हमें अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने उससे पता लग गया होता है ऐसा, लेकिन आपको प्रूफ करना है. तो प्रूफ के लिए क्या करोगे बताओ कोई. ट्रुथ टेबल. हाँ, बनाओ टू सेव बनाओ. अब जहां पर f of ab गिवन है इसका मतलब क्या है कि इन पर्टिकुलर मिन टर्म्स में हमारा आउटपुट क्या होगी. बताओ. 0 पे क्या होगी. 1 रहेगी और 1 होगी सर. यस. तो आपको जो ये पहला फंक्शन गिवन है f of a कॉमा b, ये गिवन है कि आपका दो वेरिएबल्स का फंक्शन है a और b का, राइट? और उसके अंदर हमारे पास इन पर्टिकुलर दो मिन टर्म्स आ रही है. इसका मतलब आई विल ड्रॉ हियर a एंड b and write here function f. So function, this is having four combinations, two variables, right? And I am having minterm m0, तो 0 पे हमारा 1 आएगा और 2 पे हमारा 1 आएगा, बाकी जगह क्या आएगा 0 0. तो ये आपको गिवन है. जब भी आपको फंक्शन गिवन होगा पहले आपने ट्रूथ टेबल बनाना फटाफट, फिर आपको प्रूव करना है f of ab is equal to प्रोडक्ट ऑफ 1, 3. तो आपको इसी से प्रूव करना है. सर. हाँ बोलो. सर एक बार ये दोबारा बता दो सर, मेरा नेट वीक था थोड़ा. ये टेबल हाँ जी सर. देखो, यहाँ पर आपको गिवन है फंक्शन एफ ए बी. दो वेरिएबल्स का फंक्शन दिख रहा है आपको, ए और बी वेरिएबल्स है ना. तो दो वेरिएबल्स से कितने कॉम्बिनेशन होंगे. 4 कॉम्बिनेशन लिख दिए मैंने पहले ट्रूथ टेबल में, राइट? अब इन 4 कॉम्बिनेशन का मेरा फंक्शन क्या होगा, तो उसके लिए मुझे चेक करना है ये वाला पार्ट, समीशन वाला पार्ट. समीशन दिया हुआ इसका मतलब क्या है, इट डिनोट्स द मिन टर्म्स. तो 0, 2, इट मींस 0 इज दिस m0 एंड दिस m2. ये दोनों में मेरा फंक्शन हाई है, बाकी जगह फंक्शन लो होगा मेरा, बस, राइट? सर जब हम इनका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हमको वो हाँ. लिखना है, ये इनकी मीन टर्म से a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट है, ये a b है ऐसा है करके. नहीं नहीं, टू सेव सिंपल लिख दो. टू सेव लिखने के बाद जहां रिक्वायर्ड है वहां लिखो. जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, जो 0 है, 0 इज व्हाट, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, और 2 क्या है, a b कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, मतलब बस आंसर ही आंसर में ही हाँ, लिखना है ये सब. आंसर में सीधा आएगा मिन टर्म. फिर उसके बाद देखो इसने क्या किया, उसको मिनिमाइज कर दिया, टेकिंग b कॉम्प्लीमेंट कॉमन, जो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट. सर हाँ बोलो. ठीक है सर. सर ये प्रूव हो तो गया था, यहाँ पर ये दिख तो रहा है टेबल में, जो वहां पर प्रूव करना है. प्रूफ बच्चे वो खाली टेबल से प्रूफ नहीं होगा ना, उसको बताना पड़ेगा ना आपको लिख के. देखो मैं बताता हूँ. वैसे आपने पहले कहा कि पाई, अब यहाँ पे आपने पहले फंक्शन f ऑफ a b निकाल दिया, वो कितना आया, b बार आया है ना. यस सर. तो अब आपको प्रूफ करना है कि आपका जो एफ ए बी है वो कितना आ रहा है, वो भी क्या फंक्शन सेम फंक्शन रिटेन कर रहा है. अगर पाई ऑफ 1 ऑफ 3 है ये, तो यहाँ पर क्या लिया, पाई 1 3 ले लिया. तो पाई 1 3 क्या लिया इसने, पाई 1 3 इज नथिंग बट a प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार, यस सर. है ना. इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट, सॉल्व इट एंड गेटिंग b बार ओनली. ओके. तो इट मींस मेरा फंक्शन जो मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखा था या मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिखा था, वो दोनों सेम ही है, और वो फंक्शन है क्या, b बार. अब एक चीज और समझो ध्यान से, कि जब मेरा ये फंक्शन आ गया b बार, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे ये दो वेरिएबल्स हैं a और b, इसमें a की तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई, है ना. बिकॉज माई फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b irrespective of my a. So it means if I focus on my truth table on this b column, sorry, on this b column, this side, can you relate b with f? Where is b? 0 1 1 0 0 1 1 0 irrespective of a. So आपको ये भी चीज समझ, एक तो है कि हमने मिनिमाइज कर दी, दूसरा आप ये भी दिमाग में बैठाओ कि अगर फंक्शन मेरा b कॉम्प्लीमेंट ही खाली आ रहा है या b आ रहा है खाली, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अदर वेरिएबल है दैट इज इंडिपेंडेंट, उसकी जो मर्जी वैल्यू हो, मुझे आई एम लीस्ट बॉदर फॉर दैट. क्लियर हुआ है पॉइंट? यस सर पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर दो सर.
हाँ मैं Clear. ये बोल रहा हूँ बच्चे, इसमें जो फंक्शन आपका है ना, ये फंक्शन क्या आया, इट इज कमिंग आउट टू बी बार ओनली, है ना। तो बी बार में हालांकि फंक्शन मेरे दो वेरिएबल्स का ए और बी का, लेकिन आउटपुट सिर्फ बी बार आ रहा है। इट मींस इट दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ A. A. A can either be take 0 value or 1. I am not bothered for that. I am just bothering about the B because my output is getting B complement. Okay, sir. Right? This is just a type of, you can say, you can understand the significance कि हाँ कि आपके ऊपर क्या आ रही है. You can have a better interpret कि हाँ B बार आ रहा है, it means B के ऊपर देखना, एक बार फोकसिंग करना. तो मैं 2 से भी देख लिया, जहाँ B 0 है वहाँ F1 है, जहाँ B 1 है वहाँ F0 है. So it is showing the same thing. Now summation 1 3, अगर आपको summation 1 3 गिवन है तो 1 3 क्या आ गया आपका, B आ गया, which is what, the complement of FAB. क्योंकि FAB क्या आया था मेरे पास, B complement आया था, B complement आएगा, yes sir. B उसका complement दोबारा आएगा. complement किया तो B बन गया. तो वही यहाँ पर कहा था कि प्रूफ करना F complement AB is equal to summation 1 3. So summation 1 3 B आया, it means it is automatically saying that it is the FAB complement. Likewise pi 02, pi 02 का मतलब क्या, A plus B into A bar plus B. ओपन किया ये B आ गया, तो it means this is equal to this. And finally जो आपके पास आउटपुट है, it indicates F complement AB is equal to summation of min terms 1 3 is equal to the product of max terms 0 2, and that is equal to B. Clear question में? चलो और करते हैं. Express the Boolean function f is equal to xy plus x bar z in a product of max terms. तो क्या करेंगे, पहले देखो जरा, सबसे पहले स्टेप क्या किया हमने, कन्वर्ट द वही किया फंक्शन सर. इनटू ऑड टर्म्स. हाँ जी बोलो. नहीं सर, कुछ नहीं. हाँ, इनटू ऑड टर्म्स यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लस जेड वाला फॉर्मूला लगा दिया, एक्स वाई प्लस जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस Z जेड into y plus z. इंटू वाई प्लस जेड. तो यहाँ पर क्या किया, एक्स वाई ये है मेरे पास, या इसको इसको एक मान लो, ए मान लो, सर मान लिया वो Z मान लिया सर. हाँ ये रख दिया. So this plus x bar, this plus z. फिर इसमें फिर से दोबारा ये सेम फॉर्मूला लगा दिया, x plus x bar बन गया, ये x bar plus y बन गया, और ये x plus z और y plus z बन गया. ये चीज हमारी क्या होगी, 1 1 sir. x bar plus y ये आ गया, x plus z सिंपल y plus z. क्लियर ये पॉइंट? Yes sir. अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब हर एक में देखो 3 टर्म्स एक्स वाई जेड का वेरिएबल है हमारे पास, लेकिन तीनों में 3 टर्म्स नहीं है, सिर्फ 2 टर्म्स ही है ना. तो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द थर्ड टर्म आल्सो. तो वो कैसे करेंगे, बाय एडिंग. तो हमने देखो क्या ऐड किया, पहले वाले ब्रैकेट में z मिसिंग है तो प्लस z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट, दूसरे में y मिसिंग है तो प्लस y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, थर्ड में x मिसिंग है तो x इंटू x कॉम्प्लीमेंट. Then again apply this formula xy plus z 1 by 1. तो expand हो गया ये हमारे पास. And try to remove the redundant terms. यहाँ देखो x plus y plus z दोनों में आ रही है, और कोई टर्म कांस्टेंट सेम है. देखो ये x bar plus y plus z और x bar plus y plus z. So we get only these terms, 4 terms. With 6 terms में से 2 terms आपकी redundant terms हैं. So we get finally this. This is equal to what? Max term कौन सी देख लो इसमें से, x plus y plus z, ये कौन सी टर्म होती है, बोलो. M0. m0. x plus y bar plus z M2. 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 This is M4. 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 M5. M5. राइट. तो ये हमारे पास Right. क्या आ गया, फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ POS. 2s. क्लियर?
एनी डाउट इन दिस? सर हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, इसमें 2 टर्म्स एक्स्ट्रा नहीं है सर? मतलब आपने यहाँ पे 4 टर्म्स लिखी, मतलब वो आपने निगलेक्ट करी है सर वो रिमेनिंग टर्म्स? कहाँ पर बच्चे? सर स्टेप 3 में सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था, आप कह रहे थे मतलब 2 टर्म्स कॉमन आ गई मतलब। हाँ सर वो कह रहा था मतलब यहाँ पे 2 देखो टर्म्स ना, आपने कॉमन। नहीं यहाँ पे जो आपकी टर्म्स आई है ना, ये देखो यस सर। यहाँ पर कितनी टर्म्स आई? टोटल 6 टर्म्स आई है। यस सर। ये 6 टर्म्स वाले मैंने यहाँ लिख दी, यस। ठीक है। अब इसमें देखो 2 सेम टर्म्स कौन सी हैं? दिस एंड दिस आर सेम। यस सर। तो इसको मैंने एक बार लिखा यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे और देखो और कौन सी हमारी टर्म्स? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसको मैंने एक बार लिख दिया। ओके सर। अब सर बाकी 2 टर्म्स बच गई, वो मैंने लिख दी, 4 टर्म्स होगी। ओके सर, क्लियर तो हो 6 टर्म में से 2 टर्म रिटर्न टर्म होगी हमारे पास, गया। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर ये स्टेप 2 में क्या किया था? स्टेप 2 में क्या किया था? ऐड किया था। जहां हमने हमने ये चेक करना है कि जितनी हमारी और टर्म्स हैं, क्या हर एक और टर्म में सारे वेरिएबल्स हैं। अगर तो किसी में मान लो कोई वेरिएबल मिसिंग है, तो उसमें प्लस कर दो वो वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट, यस सर, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। और देखो आगे, फाइंडिंग द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ बूलियन फंक्शन। अब आपको क्या गिवन है? फॉर द फॉलोइंग बूलियन फंक्शंस फाइंड द फंक्शन f3 which is f1 plus f2 and f4 which is f1 dot f2। करो शाबाश, मुझे बताओ इसका आंसर। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स। आपको 2 फंक्शंस गिवन है, आपको निकालना क्या है? थर्ड फंक्शन f3 जो f1 प्लस f2 होगा, और f4 निकालना जो f1 डॉट f2 होगा। और ये ध्यान रखना, जो पहला फंक्शन गिवन है वो किस में गिवन है? मिन टर्म्स में गिवन है। दूसरा टर्म आपको मैक्स टर्म्स में गिवन है। सर अभी किस में निकालना है, पीओएस में या एसओपी में? आपको f3 और f4 निकालना है, जिस मर्जी में निकालो। ठीक है। हो जाएगा। ओके, लेट्स डू इट। आपको फंक्शन गिवन है, मिन टर्म्स में फॉर्म है 2, 4, 6, 10, 12। ये आपकी f1 है। f2 गिवन है आपको मैक्स टर्म्स में। अगर ये मैक्स टर्म्स गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग इस फंक्शन की मिन टर्म्स क्या होंगी? जो बच गई, यस है ना। सर। तो वो क्या होंगी? देखो 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15। ऑल एग्री विद दिस? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमने f3 निकालना है f1 प्लस f2। इट मींस अब जो मेरा f3 बनेगा उसमें f1 वाली टर्म भी होनी चाहिए और f2 वाली टर्म भी होनी चाहिए। तो 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 यहां से आ गया, 3 ये हो गया, 4 दोनों में है तो 4 एक बार लिख दिया, 5 आ गया, फिर 6 दोनों में, 6 एक बार लिख दिया, 7, देन उसके बाद 10, 12 दो बार है, एक बार लिख दिया, 13, 15। So this is a function f3 which contains both the functions f1 as well as f2। clear, सिंपल था, कुछ नहीं है इसमें। तो अब f4 चाहिए आपको। f4 कैसे मिलेगा? is obtained by considering all those minterms where f1 and f2 are true, है ना। तो अब आपको वो वाली टर्म्स चाहिए जो f1 में भी हो और f2 में भी हो, तभी आपका f4 हाई आएगा उस टाइम पे। यस और नो? यस यस सर। सर। तो हमने वो देखा कि f1 की जो टर्म्स हैं और जो f2 की मिन टर्म्स हैं उसमें कौन सी कॉमन टर्म्स हैं। तो यहाँ पर देखो 0, 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 कॉमन है दोनों में, फिर 6 कॉमन है और एक 12 कॉमन है।
So these are the only three terms which, when ANDed together, gives the function output high. So this F4 is sum of min terms 4, 6, and 12. Is it clear? Any Yes, doubt? sir. No, Yes, sir. sir, clear. Okay. So to obtain POS of F3, consider all those maxterms where F1 or F2 is 0. And to obtain POS of F4, consider all those maxterms where F1 and F2 are both 0. तो ये हमने जो लिखा है फॉर्म, कौन सी फॉर्म लिखी थी हमने? एसओपी फॉर्म लिखी है। तो पीओएस के बता रहा है आपको कि अगर आपको F3 का पीओएस निकालना है तो वो मैक्सटर्म्स लो जहां पर F1 और F2 दोनों ही 0 हो। और F4 के लिए कंसीडर ऑल दोस मैक्सटर्म्स वेयर F1 एंड F2। ध्यान रखना यहाँ पर पहले वाले में और लिखा है, दूसरे में एंड लिखा है। और का मतलब यार प्लस होता है, एंड का मतलब हमारा डॉट होता है, प्रोडक्ट होता है, राइट। तो जब हमने F1 निकालना है तो हमने दोनों F1 F2 की वो वाली मैक्सटर्म्स लेनी है जो दोनों ही 0 हो। क्लियर? यस सर। यस सर। अब मैं आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा अभी कि नैंड गेट आपको कोई गिवन है। नैंड गेट तो हमने आपको बताया था, इट्स नोन एज यूनिवर्सल गेट, राइट। दैट मींस एनी लॉजिक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग दिस गेट्स। तो हमने ये आई थिंक डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट वाला, है ना? यस सर। कॉम्प्लीमेंट भी किया था हमने, और भी किया था, और एंड भी किया था। एंड भी किया था। तीनों किया था ना? सो लेट्स हैव अ क्विकली रिकैप। ये तो हमारा जनरल हो गया। अब यहां देखो ये एंड इनवर्ट ऑपरेशन, ये एंड इनवर्ट हो गया, ये इनवर्ट और हो गया। इनवर्ट और का मतलब क्या है? वी आर यूजिंग नैंड गेट टू परफॉर्म द और ऑपरेशन। दिस इज वी आर यूजिंग द नैंड गेट टू परफॉर्म द विच ऑपरेशन? नैंड। नैंड से नैंड ही करोगे। यस, यहां पर देखो क्या है, ये एक नैंड गेट का सिंबल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये दोनों सेम है, पता है आपको? हाँ सर, दिख गया। डिमॉर्गन्स लगा देंगे दूसरे में। यस, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन इनपुट्स हैं, आउटपुट क्या है? एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट। यहाँ पर एक्स वाई जेड इनपुट्स हैं, लेकिन यहाँ पर बबल लगा रखा है, तो उसके अंदर क्या जा रहा है पता है? एक्स डैश। एक्स डैश, कॉम्प्लीमेंट होगा सर। वाई डैश, जेड डैश, जेड ये डैश। तीनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि और गेट है ये, है ना? तो दिस Yes, इज sir. नथिंग बट एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो दिस Complement. थिंग एंड दिस थिंग बोथ आर सेम। सेम। इसको बोलते हैं एंड इनवर्ट। पहले एंड कर रहे हैं, फिर इन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर पहले इन्वर्ट कर रहे हैं, फिर और कर रहे हैं। समझे? तो जो नाम दिया एंड इन्वर्ट, इट इज रिस्पेक्ट टू माय इनपुट। तो इनपुट को पहले एंड करेंगे, फिर इन्वर्ट करेंगे, तो वो आपका ये नैंड ऑपरेशन बना। इन्वर्ट और में क्या है? पहले इनपुट्स को आपने इन्वर्ट किया, फिर उनकी ऑरिंग करी। नाउ NAND implementation. So implementation of a Boolean function in NAND form requires the function to be in SOP form. Implement and or form of expression. Let's take कि आपके पास ये given था, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? AB plus CD, है ना? तो अब AB plus CD आपने कैसे किया? यूजिंग ओनली NAND गेट्स। तो जो हमने सीखा था, हम वैसे करके देखते हैं, इसको फॉलो नहीं करते 2 मिनट के लिए। हमने सीखा था कि अगर फंक्शन f इज इक्वल टू AB प्लस CD है, तो मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था? एक नैंड गेट लो, उसकी आउटपुट लिख दो AB प्लस CD जो फंक्शन है। अब इसकी इनपुट्स क्या होंगी? दो, AB का होल कॉम्प्लीमेंट और CD का होल कॉम्प्लीमेंट। AB का होल कॉम्प्लीमेंट एंड CD का होल होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। राइट। अब ये कहां से मिलेगा मुझे AB का होल कॉम्प्लीमेंट? फ्रॉम अनदर नैंड गेट। इसकी इनपुट्स क्या होगी? A और B। AB। ए और बी। और यहाँ पर क्या होगी? C and D। ए तो सी ये डी। मेरा क्या हो गया? I have implemented this function using only NAND gates. अब इसने यहाँ पर क्या रखा है? इसने दो लिए एंड इनवर्ट और एक लिया है और इनवर्ट और। Inverter। तो आप तो ये बनाओ दोनों सेम चीज ही हैं, कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर, ठीक है? तो डोंट गेट एनी टाइम कंफ्यूज कि सर ये क्या आ गया और ये क्या है। These both are the
नैंड गेट्स। फर्क क्या है, ये एंड इन्वर्ट है, ये इन्वर्ट और है, बस। Now let's take this function. करो जरा इसको इंप्लीमेंट यूजिंग ओनली नैंड गेट्स। तो पहले करना क्या पड़ेगा आपको, इस फंक्शन को ट्रूथ टेबल बनाओ इसका फंक्शन का, फिर इस फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, फिर देखो कोई टर्म्स यूज होती हैं, शॉर्टकट होता है, कुछ नहीं बनता। इस फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z, और आपकी आउटपुट जो फंक्शन है वो कब कब हाई है, 6 टर्म्स में हाई है। सो ओनली 2 टर्म्स में आपका आउटपुट 0 है, बाकी सब जगह क्या है, 1 है। तो अभी आपने के में अपनी सीखे, के हम सिखाएंगे आपको बाद में। अभी हम सिंपल बुलियन अलजेब्रा यूज करते हैं। तो पहले जो आपका टेबल बनेगा x, y, z, f 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड इस पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपकी ये टर्म्स कौन सी आएगी, मिन टर्म्स, m1 m2 m3 m4 m5 एंड m7। तो लिखो क्या बनेगा फंक्शन मेरा, बोलो। ये बस सिंप्लीफाइड होके आ रहा है a कॉम्प्लीमेंट प्लस ac। हमारे पहली बात तो ये a कॉम्प्लीमेंट, ये फंक्शन में x y z है, तो यू कांट यूज abc। अच्छा, वो वेरिएबल नहीं देखे थे। अब वेरिएबल्स टर्म में आंसर पाओ मुझे क्या आएगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस xz। बस। हाँ, बस इतना ही बन रहा। ये तो आगे और भी सॉल्व हो जाएगा अगर ये आ रहा है, अच्छा या फिर ठीक है, x फॉर्मूला। प्लस yz। हाँ, पर ये नहीं आएगा, गलत निकाला है कुछ, सबका ही आ रहा है। चेक करो किसी और कोई और तो बताओ मुझे। अदरवाइज क्या करो, जहां जहां फंक्शन मेरा हाई है वो लिख दो, फंक्शन क्या है। पहले में क्या आएगा, 0 0 1 पे हाई है, तो x बार y बार z प्लस x बार y z बार प्लस x बार y z प्लस x y बार z बार प्लस x y बार z प्लस x y z। राइट, अब देखो कुछ कॉमन निकलता है, इन दोनों में x y बार कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में x बार y कॉमन आ जाएगा, है ना। तो इसको कंबाइन करो तो क्या बनेगा इन दोनों से, x बार y। सर गलत है, दिख गया। ये गलत है ना ये वाला, हाँ गलत है, दिख गया। हाँ कोई बात नहीं। ये आ गया आपका x बार y, और ये दो टर्म्स में क्या आएगा, x y बार। सब कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे, लग नहीं रहा मुझे सारे कर रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर ये y के ऊपर ही है ना, बार लास्ट वाले में, हाँ उसके सेकंड लास्ट वाले में। हाँ ये वाला ना, हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो के ऊपर x y बार ही है ना। ओके सर। तो अब मेरे पास क्या बन गया, x बार y बार z प्लस x बार y प्लस x y बार प्लस x y z। अब इन दोनों में x बार कॉमन निकल जाएगा फर्स्ट टू में, और अप्लाई कर दो फॉर्मूला
y प्लस y बार z क्या बन जाएगा? y बार प्लस y इंटू z प्लस y y प्लस इसमें से कुछ कॉमन निकलता है, x निकल जाएगा कॉमन। इसमें क्या बनेगा? y बार प्लस y y बार Into? प्लस z y बार प्लस z। अब ये तो क्या हो गया? y प्लस y बार 1, 1 ये भी 1, तो क्या रहेगा हमारे पास? देखो we will left with x bar z plus x bar y plus x y bar plus x z। है ना? अब फर्स्ट और लास्ट टर्म इकट्ठी कर दो, z कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? z प्लस x बार y प्लस x y बार। आ जाएगा ये फंक्शन ये? बताओ बच्चे क्लास में 66 Yes, में sir, yes, रिस्पॉन्स नहीं आ sir. रहे इतने। यस हाँ? सर सर है बीच में ही है सर। क्या नहीं है? सर बीच में ही है बच्चे। नहीं बीच में तो है, पर रिस्पॉन्स जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा, या तो समझ नहीं आ रहा या कहीं और ही घूम रहे हैं। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरी नहीं करनी है, आपने खुद करनी है भाई। यस सर और जितनी करोगे उतने ही आपका हाथ बैठेगा, उतने आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, तो अब आप देखो ये फंक्शन आपके पास आ गया। इस फंक्शन को कैन यू इंप्लीमेंट विद NAND गेट्स? यस यस सर। सर करो फिर। स्टार्ट फ्रॉम सर द आ गया सर आंसर। आ गया। हम्म NAND गेट से इंप्लीमेंट करो फिर। तो जब भी NAND गेट से इंप्लीमेंट करना है, कोई भी गेट से इंप्लीमेंट करना है, तो हमेशा आउटपुट से स्टार्ट करो और उसको बैक ट्रैक करो। सर हाँ जी बोलो। साथ में सर आप ये MST का सिलेबस कंफर्म कर देंगे, लाइक कहाँ तक आएगा? MST का सिलेबस उस पर डाला है नेट के ऊपर। पहले वाला जो क्विज था ना आपका, पहले वाला जो क्विज था जो 2 तारीख को होना था, उस टाइम से तो हमारा ये शेड्यूल था कि आपका BJT तक आना था सिलेबस, अप टू BJT। और जो सेकंड क्विज था आपका 9 तारीख को, उस टाइम पे था कि आफ्टर BJT टिल नंबर सिस्टम्स। तो अब दोनों आएंगे? पर अब जो से आए वो पेपर आपका आई थिंक 25 को हो गया। हाँ जी। यस हाँ, सर तो प्रोबेबली तीनों क्विज का सिलेबस सेम होगा शायद। आई एम नॉट श्योर फॉर दैट, वो बता देंगे आपको। ओके आप सर। तैयारी रखो अपनी। सर ये भी आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो पढ़ा रहे हैं वो तो आएगा ही यार। सर बट नए बैचेस में शायद से नहीं हुआ यहाँ तक। तो तब तक हो जाएगा ना, 25 को है क्विज आपका। डिले हो गया ना अब। सर 4 दिन ही तो बचे बस। क्यों? 25 जैन यस सर 25 जैन है। गुड मॉर्निंग। कहाँ सो रहे हो? सर ये तो लगता नहीं है सर या तो आपने ज्यादा तैयारी कर ली है ना। सर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाओ इसको। पहले सर आगे quiz करा था, 500 ये हुआ नहीं पूरा। कोई सर बात नहीं। टाइम हो गया सर ऐसे अभी है बहुत टाइम है, 1 महीना 4 दिन है उनको उसको। सर आप अटेंडेंस ले लो सर अभी। सर ले यस लेते attendance। आप पहले सर्किट इंप्लीमेंट करो फटाफट। ये बताओ मुझे इसका क्या आएगा, इसके बाद लेते अटेंडेंस। इसकी इनपुट्स क्या होंगी? बताओ। फॉर दिस पर्टिकुलर आउटपुट व्हाट शुड बी द इनपुट? इसका आएगा z प्लस x बार y का होल कॉम्प्लीमेंट। नहीं, मेरे को 3 इनपुट सेपरेट करनी है। थ्री टर्म्स है ना आउटपुट के ऊपर। सर मेरे को लगा 2 इनपुट NAND गेट लगा रहे हो आप। तो वैसे 3 भी कर सकते हैं सेम। हम्म 2 में क्या लिखा था आपने बताओ?
सर अभी वैसे बना रहा हूँ, ऊपर वाली ब्रांच में मैंने दी है z प्लस एक्स बार वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, हाँ, और नीचे दे दिया एक्स बार वाई क्यों एक्स बार वाई क्यों दिया? वाई नॉट एक्स वाई बार का कॉम्प्लीमेंट? जो भी अच्छा ठीक आपकी है। इंडिविजुअल टर्म्स है ना बच्चे, उनका हम्म, कॉम्प्लीमेंट करना होता है ना आपने। तो ठीक है यहाँ ठीक पर है ऐसे आप 3 टर्म्स में करोगे तो यहाँ z कॉम्प्लीमेंट, दूसरी टर्म आएगी एक्स बार वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आएगा एक्स वाई बार का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ठीक है। फिर इसके लिए यहाँ पर एक नैंड गेट यूज करो, इसको शॉर्ट कर दो, z दे दो यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास क्या है इनपुट इसकी बताओ? एक्स अगर बार और आपको वाई आई, एक्स बार एक्स और बार वाई, और वाई, और नीचे वाले में एक्स और वाई बार। एक्स एंड वाई बार। फिर एक्स बार जनरेट करने के लिए अगेन टेक अ नैंड गेट, शॉर्ट द टू इनपुट्स एक्स। सिमिलरली वाई के लिए भी, वाई बार के लिए भी। ठीक है, यस सर। चलो अभी स्टॉप करते हैं। कोशिश करो मैक्सिमम क्वेश्चन की करने की, ठीक है? कोई डाउट आएगा तो लेके आओ डाउट्स। सब लोग